معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسول نبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدنی والجود والکرم، بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور جلا کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدنی والجود والکرم، بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ پوتر مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بڑا عزت و بزرگی و ادب والا مہینہ ہے۔ شاعر کہتا ہے، کرو سونے کو 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی۔ کرو سونے کو 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ کرو سونے کو 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ ضرورت مند کو چوکھٹ سے خالی نہ لوٹاؤ، ضرورت مند کو اپنے چوکھٹ سے خالی مت لوٹاؤ، خدا کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی، خدا کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ حضرات، شاعر کہتا ہے، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے ہم تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے ہم تمامی کا، تو گلے میں ڈال لے پٹا محمد کی غلامی کا، تو گلے میں ڈال لے پٹا محمد کی غلامی کا۔ آئیے ایک مرتبہ اور عقیدت و محبت کے ساتھ جلا کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدنی والجود والکرم، بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بڑا پیارا مہینہ۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آنے کے بعد ہر انسان عبادت و ریاضت کی طرف جھکنے لگتا ہے، اور چھوٹی موٹی جو بھی غلطیاں ہوں، جو بھی گناہیں ہوں، انسان باز رہنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نماز و روزے کے ساتھ ساتھ، حج و زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ میرے دوستو صدقہ و فطرہ و زکوٰۃ دینے کی بھی حکم فرمایا ہے۔ انسان رمضان کے مہینے میں یا پھر 11 مہینے میں جو کما کر اپنے بچوں کی پرورش کر کے اپنے گھر چلانے کے بعد جو پیسہ بچا کر بینک بیلنس کرتا ہے، جو پیسہ بچا کر اپنے اکاؤنٹ میں ڈالتا ہے، گاڑی گھوڑے خریدتے ہیں، زمین و جائیداد خریدتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس میں سے بھی میرے دوستو جانتے ہیں، جیسے آپ کے پاس سونا ہے تو میرے دوستو 7.5 تولہ سونا کے بعد جو ادھکتر آپ کے پاس میں ہے، جو زیادہ سونا آپ کے پاس میں ہے 7.5 تولہ کے بعد، اس میں سے میرے دوستو قیمت جوڑنے کے بعد 2.5% آپ پیسے نکال کر جوڑ کر غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، معذوروں کو مدد کرنے کا حکم ہے۔
अगर आपके पास 52 तोला चांदी से ज्यादा आपके घर में चांदी है तो उसकी कीमत जोड़कर 2.5% निकाल कर गरीबों को देने का हुक्म है मेरे दोस्तों। और जो पैसे आप कमाते हैं कोई जरूरी नहीं कि 11 महीने जो पैसे आपने कमाई कामयाबी हासिल किया आप अपने अकाउंट में इकट्ठा किया मेरे दोस्तों, कोई जरूरी नहीं कि आप अपनी किस्मत से कमा रहे हैं। आपके माँ बाप की भी दुआ लग सकती है, आपके आगे बढ़ने में कामयाबी मिलने में आपके बीवी की भी दुआ लग सकती है, आपके बच्चों की भी दुआ लग सकती है, आपके पड़ोसी बुजुर्गों की भी दुआ से आप कामयाबी हासिल कर रहे हो। कोई किसी के अंदर ये गुरूर नहीं आनी चाहिए कि मैं अपनी किस्मत से कमाता हूं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला रमजान के महीने में इबादत और रियाजत के साथ साथ अपने आमदनी के पैसे से मेरे दोस्तों जकात और सदका के तौर पे फितरे के तौर पे मेरे दोस्तों गरीबों को अदा करने का हुक्म देता है। मेरे दोस्तों रमजान का वो प्यारा महीना है कि आप नफिल नमाज पढ़ोगे फर्ज का सवाब मिलेगा, सुन्नत नमाज पढ़ोगे फर्ज का सवाब मिलेगा, फर्ज अदा करते हो तो आपको 70 फर्जों का सवाब आपके नामा आमाल पे दे दिया जाएगा। मेरे दोस्तों इसी तरीके से 5 नमाजों के साथ साथ मेरे दोस्तों 20 रिकात तरावी की नमाज भी जरूरी है। जो इंसान मस्जिदों में जाकर कोई 15 दिन में एक कुरान मुकम्मल करता है, कोई 7 दिन में करता है, कोई 1 महीने में करता है, कोई 10 दिन में करता है, इसका ये मतलब नहीं मेरे मरहजात मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों कि आपने 7 दिन 15 दिन 9 दिन की तरावी पढ़ ली आपने तरावी मुकम्मल कर लिया, नहीं आपने तरावी की नमाज में कुरान मुकम्मल सुना है, आपने तरावी की नमाज में कुरान मुकम्मल पढ़ा है। तरावी तो पूरे 1 महीने पढ़ी जाती है। मेरे दोस्तों अपने आप पे इस पे ध्यान रखिए, अल्लाह की इबादत और रियाजत में मसरूफ रहिए और खुद भी अफ्तारी व सहरी के एहतमाम कीजिए और अपने घर वालों को भी एहतमाम करवाइए और पड़ोसियों को भी ख्याल कीजिए। मेरे दोस्तों या तवज्जो के साथ समाअत फरमाइए, रमजान का वो महीना जो महीना पाने के बाद इंसान अपने पिछले गुनाहों की तौबा करके मेरे दोस्तों अपनी गुनाहों की माफी मांग लेता है, माफ करवा लेता है, फिर इबादत और रियासत करके वो जन्नत का हकदार बन जाता है। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है रमजान के महीने में मैं ज्यादा से ज्यादा गुनाहगारों के गुनाहों को माफ कर देता हूँ, जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल देता हूँ। रमजान मुबारक का चांद दिखा मेरे दोस्तों, जानते हैं जैसे ही चांद दिखता है अल्लाह तबारक व तआला जानते शयातीन को जकर देता है और जहन्नम के दरवाजों को बंद कर देता है, जन्नत के दरवाजे को खोल देता है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रमजान का वो प्यारा और इज्जत व बुजुर्गी वाला महीना है कि रमजान के महीने में कोई अगर खुश नसीब इंसान इंतकाल कर जाता है तो वो कब्र के आजाबों से भी बच जाता है, कब्र के हौलनाक सवालों से भी बच जाता है, हौलनाक अजाबों से भी बच जाता है, बल्कि कब्र में उसे हिसाब व किताब नहीं लिया जाता और उनके जन्नत की आराइश दे दी जाती है, जन्नत की खिड़कियों की हवाएं आने लगती है, जन्नत के ऐशो आराम में वो जिंदगी मरे हुए जिंदगी गुजारने लगते हैं। मेरे दोस्तों और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यही दुआ रहे कि जो हजरात रमजान मुबारक में इंतकाल कर जाए जैसे कब्र के सवालों से बच जाते हैं, कब्र के अजाबों से बच जाते हैं, कल कयामत के दिन भी वो बख्शे जाए और मेरे दोस्तों गुनाहों से वो बख्श दिए जाए, बल्कि वो जन्नत के हकदार बन जाए। मेरे दोस्तों रमजान मुबारक के महीने में जितना हो सके कोई साइल आपके घर आए, जानते हैं एक साइल आता है, एक मांगने वाला आएगा, 2 मांगने वाला आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आएंगे, लेकिन हर 10 पे हर मेरे दोस्तों 10 गरीबों पे 10 फकीरों में एक अल्लाह का सच्चा फकीर भी होता है, अल्लाह का भेजा हुआ इम्तिहान के लिए वो आया हुआ मेरे दोस्तों फकीर भी होते हैं, जो आप उनके झोली में
आप खाना डालते हो, रुपए पैसे डालते हो, आपके दरवाजे पे खड़े होकर हाथों उठाकर रब की बारगाह में फरियाद करता है, मौला ये मुबारक महीने में ये मेरे कासा में खाना डाल दिया, अफ्तार डाल दी घर वाले ने, परवरदिगारा इनके घर में बरकत अता फरमा, इनके घर से मुसीबत को दूर कर दे, इनके शौहर के कारोबार में बरकत दे, इनके बच्चे की जिंदगी को कामयाब कर दे। मेरे दोस्तों, अगर आपके दरवाजे पे भी साइल आते हैं, आप लौटाओ नहीं, 2, 4, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, जितना हो सके गरीबों की झोली में डाल दे। मेरे दोस्तों, सदका एक ऐसी चीज है, एक ऐसी शय है कि आने वाली मौत को भी टाल देती है। हजरात, सुनने में आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि मौत अटल होता है, न 1 मिनट आगे हो सकता, न 1 मिनट पीछे आ सकती, लेकिन मौत सदका कैसे टाल देता। मेरे दोस्तों, तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। रसूल कायनात मदीने के टूटी चटाई पर बैठकर इरशाद फरमाते हैं कि सदका दिया करो, सदका से कभी कभी आने वाली मौत भी टल जाया करती है। हजरात, तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। रसूल कायनात मस्जिद नबी से नमाज अदा करने के बाद बाहर निकलते हैं। बाहर जैसे ही निकले, सेहन में खड़े हुए सहाबाए किराम को बुलाकर सबसे हाल चाल पूछने लगे। बता ओ साहबा, तेरा क्या हाल है? ओ साहबा, तेरा क्या हाल है? मेरे दोस्तों, इतना पूछना रहता, पूछते पूछते रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाहें उठी तो क्या देखते हैं, दीवार से एक गरीब नौजवान सहाबी टेक लगाए खड़े हैं और निगाहें नीचे किए हुए हैं। मेरे दोस्तों, रसूल कायनात इशारे से बुलाते हैं, वो गरीब नौजवान सहाबी सामने आया, निगाहें नीची है। रसूल कायनात इरशाद फरमाते हैं, ओ सहाबा, तुम दूर क्यों खड़े हो? बता तेरा क्या हाल है? वो इतना पूछना था कि गरीब नौजवान लड़का आंखें नीची करके, आंखें भीग जाती है, आंखों में आंसू की बारात लगती है और जारो कत्तार रोते रोते अर्ज करता, या रसूलल्लाह, मुझसे क्या हाल पूछते हैं? गरीबों को क्या ही होना, एक वक्त खाना खाता हूं तो 3 दिन के लिए पेट पे पत्थर बांध लेता हूं। गरीबी और तंगी, मेरे रसूलुल्लाह, गरीबी और तंगी इतने घेरे हुए हैं कि दिन गुजर जाता है तो रात नहीं गुजरती, रात गुजर जाती है तो दिन नहीं गुजरता, पेट पे 3-3 दिन के लिए पत्थर बांध लेता हूं। इतना सुनना था कि अल्लाह तबारुक व तआला बुलबुले सिदरा जिब्रील अमी को वही लेकर भेजते हैं और रसूल कायनात को ऊपर वही उतारते। आकर बुलबुले सिदरा जिब्रील अमी अर्ज करते, या रसूलल्लाह, अल्लाह तबारुक व तआला का फरमान है कि जिस नौजवान सहाबी से आप हाल पूछ रहे हो, इसे कल असर से पहले इंतकाल हो जाना है, इसे असर से पहले कल मर जाना है, इसको असर से पहले इसे मौत आकर घेर लेगी। या रसूलल्लाह, इससे सोच समझ कर पूछिएगा। इतना सुनना था कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखें भी अश्कबार हो जाती है, अश्कबार आंखों से पूछते, ए नौजवान, छोड़ो, दुनिया में तंगी और अमीरी गरीबी चलती रहती है, बता तू मुझे ये बता कि दुनिया में तू बचपन से लेकर जवानी तक तेरे अंदर कोई ऐसी ख्वाहिश है जो तू चाहा हो और तुझे न मिला हो, तुम जिस चीज की तमन्ना किए हो और तुझे वो चीजें न मिली हो, किसी चीज की आरजू तेरे दिल में हो और वो तू न पा सका हो। जानते वो गरीब नौजवान इंसान, नौजवान सहाबी निगाहें नीची करके कहता है, या रसूलल्लाह, मेरे अंदर 2 ख्वाहिश है। कहा क्या? तो वो गरीब नौजवान सहाबी कहता है, या रसूलल्लाह, मैंने फर्ज की, सुबह की फर्ज नमाज आपके पीछे अदा की है, मैंने जोहर के हर वक्त की नमाज आपके पीछे अदा की है, मैंने असर मगरिब ऐशा हर वक्त की नमाज, यहां तक कि तहज्जुद की भी नमाज आपके साथ मैंने अदा किया है। न तो मैंने कभी फर्ज नमाज छोड़ी है, न तो कभी मैंने जो सुन्नत नमाजें छोड़ी है, न तो कभी मैंने असर की नमाजें छोड़ी है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर फर्ज
नफिल सुन्नत को मैंने अपनाया है, लेकिन या रसूल अल्लाह पहली मेरी ख्वाहिश ये है बचपन से जवानी तक कि मैंने मीठा हलवा खाना चाहा, लेकिन तंगी मेरे आगे पीछे इतनी ज्यादा है कि मैंने इतना ही पैसा कमाया कि अपने एक वक्त की रोटी खरीद कर खा सकूं, मैं अपने पेट को पाल सकूं, अपने जान को बचा सकूं। या रसूलुल्लाह आज तक मैं सोचता रहा कि मीठा हलवा खाऊं, लेकिन मेरा नसीब साथ नहीं दिया, मैं खा नहीं पाया। रसूल कायनात अपने चहीते सहाबी उस्मान गनी को बुलाते हैं और अर्ज करते हैं, ए उस्मान गनी, अल्लाह तबारुक व तआला तुझे दौलत के अंबार दिया है, तेरे पास दौलत की कमी नहीं, जाकर घर में उम्दा हलवा बनवा कर लाओ, कीमती हलवा बनवा कर लाओ। उस्मान गनी घर चले जाते हैं, फिर दूसरा आरजू पूछते हैं, ओ साहबा बता दूसरी ख्वाहिश क्या है, दूसरी तमन्ना क्या है, दूसरी आरजू क्या है? तो साहबी रसूल निगाहें नीची करके अर्ज करते, या रसूलल्लाह फर्ज मैंने आपके साथ पढ़ी है, सुन्नत मैंने आपके पीछे सुन्नत आपके साथ पढ़ी है, अब असर मेरे दोस्तों नफिल मैंने आपके साथ पढ़ी है। या रसूलल्लाह कोई फर्ज, कोई सुन्नत, कोई नवाफिल मेरे कजा नहीं है, लेकिन एक सुन्नत से मैं महरूम हो रहा हूं। रसूल कायनात पूछते वो कौन सी सुन्नत है? तो जानते साहबा कहते निगाहें नीची करके, या रसूलल्लाह निकाह करना भी एक सुन्नत है, शादी करना भी एक सुन्नत है। गरीबी की वजह से कोई अपने बेटी के रिश्ता मुझसे नहीं करना चाहता कि मैं खुद नहीं खाता हूं तो मैं अपने बीवी को कैसे खिला पाऊंगा, मैं अपने बीवी के पेट को कैसे भर पाऊंगा, उसकी परवरिश मैं कैसे कर पाऊंगा। या रसूलल्लाह निकाह करना भी सुन्नत है, एक सुन्नत से मैं महरूम रह जाऊंगा, मरने के बाद मैं खुदा के सामने अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा कि मैं रसूलुल्लाह के जो निकाह वाली सुन्नत है वो मैंने पूरा न कर सका। रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद में खड़े होकर अर्ज करते हैं, ओ मेरे सहाबा किसी के पास नौजवान बेटी है जो इस गरीब सहाबी के साथ रिश्ता करने के लिए तैयार हो जाए? मेरे दोस्तों तारीख गवाह है, हदीस गवाह है कि कई हाथें ऊपर उठी कि मेरे पास नौजवान बेटी है, मैं अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हूं, मैं अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार हूं। रसूल कायनात पूछते हैं कि आज से पहले तू इस गरीब को नहीं देखा था क्या? आज से पहले तू ये न सोच सका था कि इसे भी शादी करनी चाहिए और इसके साथ भी अपनी बेटी की शादी करा दे? आखिर माजरा क्या है कि मेरे कहने पे इतनी हाथें ऊपर उठ गई? एक जवान होकर साहबी रसूल बोल पड़े कि या रसूलल्लाह कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जहां पर बाप बेटे को मदद करने के लिए तैयार ना होगा, जहां पर बेटा बाप को मदद करने के लिए तैयार ना होगा, जहां पर बेटी माँ को मदद करने के लिए तैयार ना होगी, जहां पर माँ बेटी को मदद करने के लिए तैयार ना होगी, जहां पर सहेली सहेली को मदद करने के लिए तैयार ना होगी, जहां पर दोस्त दोस्त को मदद करने के लिए तैयार ना होगा। ऐसे हौलनाक मंजर में, ऐसे पुरफतन दौर में जब रसूल कायनात के उम्मती जब वहां मौजूद होंगे तो हम लोग गर्व के साथ कह सकेंगे, हम लोग फक्र के साथ कह सकेंगे, ऐ परवरदिगार आलम ये मेरी बेटी है। और इंसान दुनिया में थे, किसी की बेटी का रिश्ता उसके फूफा लेकर आया करते हैं, किसी के बेटी का रिश्ता उसके मामू लेकर आया करते हैं, किसी के बेटी के रिश्ता उसके जीजा लेकर आया करते हैं, किसी के बेटी का रिश्ता उसके चाचा लेकर आया करते हैं। लेकिन मैं वो बाप हूं कि मेरे बेटी का रिश्ता मेरे रिश्तेदार नहीं बल्कि रसूल कायनात ने बताया था, रसूल कायनात लेकर आए थे। रसूल कायनात के कहने पे मैं अपनी बेटी के निकाह इस नौजवान इंसान के साथ कर दिया है। परवरदिगारा गुनाहों की माफी करना, माफ करना तेरा काम है और रसूल के दामन पकड़ कर चलना मेरा काम है, रसूल के बताए हुए नक्शे कदम पर चलना मेरा काम है। मेरे दोस्तों इतना सुनना था कि रसूल कायनात एक सहाबी की बेटी को बोले, एक सहाबी से बोले जा अपनी बेटी को तू दुल्हन बनाकर तैयार कर दे और आज नमाज मगरिब के नमाज के बाद इसके साथ निकाह कर दे। मेरे दोस्तों पहली ख्वाहिश उस्मान गनी उम्दा हलवा भी बनवा कर तैयार किए और दूसरी ख्वाहिश निकाह वाली मगरिब के नमाज के बाद उसके निकाह कर दिए गए। हजरात
गरीबों को मदद करने से, सदका फितरा ज़कात देने से फायदा क्या मिलता है? या तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। मैंने पहले ही कहा, सदका एक ऐसी शय है, एक ऐसी चीज है कि आने वाली मौत को भी टाल दिया करती है। या तवज्जो के साथ सुनिएगा मेरे दोस्तों, ईशा के नमाज के बाद गरीब इंसान अपने दुल्हन के कमरे में गया, वही मीठा हलवा जो बचपन से खाने की ख्वाहिश थी, एक प्लेट उनके सामने मेरे दोस्तों हाजिर किया गया। मियाँ बीवी नमाज के बाद हाथ धोकर दस्तरखान पे बैठे मीठा हलवा खाने के लिए। वह मेरे दोस्तों वलीमे के तौर पे वही तकसीम किया गया था, और जैसे ही पहला लुकमा उठाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इम्तिहान लेने के लिए एक फरिश्ते को भेजता है, गरीब की शक्ल में, भिखारी की शक्ल में, मोहताज की शक्ल में, गरीब की शक्ल में आया, दरवाजे से सदाए लगाया, ए इंसान, आज तुम्हारी शादी थी, वलीमे के खाने बचे होंगे, मेरे शादी के खाने बचे होंगे, देख मेरे पेट पे 7 पत्थर बंधे हुए हैं, मैं 7 दिन का भूखा हूं, मेरे कासा में कुछ खाना डाल दे, बचा हुआ खाना कुछ मुझे दे दे। मेरे दोस्तों उनके पास एक प्लेट के अलावा मीठा हलवा नहीं था जो बीवी खाए या शौहर खाए या गरीबों को दे। कुछ देर आंखें बंद करके गरीब सहाबी सोचते हैं और कहते, अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, मैं कैसे खा सकता हूं? बीवी को इत्मीनान दिलाते हैं, ऐ मेरी बेगम, तू मिल गई, मेरी जिंदगी मिल गया, तू मिल गई, मेरी जिंदगी की सारी दौलत मिल गई, तू मिल गई, मेरे पेट के भूख खत्म हो गया, तुम अगर इजाजत दो तो ये खाना अल्लाह के नाम पे अल्लाह के फकीर मांग रहा है, मैं उसके कासे में डाल दूं। बीबी इजाजत देती है और वो गरीब सहाबी वो मीठा हलवा जो पहली ख्वाहिश थी, जिंदगी भर ख्वाहिश करता रहा, तमन्नाएं करता रहा, आरज़ू करता रहा कि मीठा हलवा खाने को मिल जाए, पहली मर्तबा अगर सामने आया भी है तो अल्लाह के नाम पे वो जानते हैं उठाकर बीबी से इजाजत लेकर अपने आए हुए फकीर के कासे में डाल देता है। जैसे ही फकीर के कासे में डाला, फकीर अपने हाथों को उठाता है, रब की बारगाह में फरियाद करता है, ऐ मौला, तेरे नाम पे मैंने खाना मांगा, ये नौजवान इंसान दुल्हा जिसकी आज शादी हुई है खाना लाकर मेरे कासे में रख दिया। ए मौला, मैं 7 दिन के भूखा हूं, मैं ये खाना खाऊंगा, मुझे सुकून मिलेगा, मुझे इत्मीनान मिलेगा। ए मौला, इस खाने के बदले में तू इसकी जिंदगी को तवील कर दे, इसके उम्र को बढ़ा दे, इनके मियाँ बीवी के नुत्फे से नेक साले औलाद अता कर दे, इन दोनों की जिंदगी को कामयाब कर दे। मेरे दोस्तों, वक्त गुजर गया, फकीर दुआ देकर चले गए, अल्लाह तबारक व तआला दुआ भी कबूल किया। मेरे दोस्तों, दिन रात गुजरी, सुबह की नमाज हुई, वक्त गुजरता गया, जोहर की नमाज हुई। जोहर के नमाज के बाद रसूल कायनात 2 सहाबी को बुलाते हैं और अर्ज करते हैं, ओ सहाबी, जा कल जिस सहाबी की मैंने शादी कराई थी उसके दरवाजे के सामने चला जा, टहलते रहना, उसके दरवाजे के तरफ कान लगा के रखना, जब उसके कमरे से उनकी बीवी की रोने की आवाज आए तो मुझे आकर खबर कर देना। साहबे रसूल पूछते, या रसूलल्लाह, माजरा क्या है? कहा, माजरा ये है कि आज असर से पहले इसे इंतकाल कर जाना है। कहा, कल ही तो इसकी शादी हुई थी। कहा, अल्लाह का कानून है कि आज असर से पहले इसे इंतकाल कर जाना है। साहबी रसूल टहलते रहे, असर की अजान हुई, नमाज भी हुई। मेरे दोस्तों, कभी तिलावत की आवाज अंदर से आ रही थी, कभी तस्बीह तहलील की आवाज आ रही थी, कभी दुआ मांगने की आवाज आ रही थी, कभी मियाँ बीवी की गुफ्तगू करने की आवाज आ रही थी, लेकिन रोने की आवाज नहीं आई। असर की अजान भी हुई, नमाज भी खत्म हुआ। मेरे दोस्तों, नमाजी बाहर निकले, रसूल कायनात आए, ओ सहाबी, तुम लोगों ने मुझे खबर नहीं दिया। कहा, या रसूलल्लाह, हम लोग टहलते रहे, दरवाजे से कान लगा के रखा, कभी तिलावत की आवाज तो आई, नमाज पढ़ने की आवाज तो आ रही थी, या रसूलल्लाह, तस्बीह तहलील की आवाज तो आ रही थी, लेकिन रोने की आवाज नहीं आई, मैं कैसे खबर देता? रसूल कायनात सजदे में गिर गए और अर्ज करते, परवरदिगार आलम, तेरी मसलिहत कैसा है? कल तो तुम मस्जिद नबी में मुझसे साहबाए फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन से कहलवाया था
کہ आज सोच समझ कर हाल चाल पूछना, कल असर से पहले इसे मौत आ जानी है, इसे मर जाना है, इसे इंतकाल कर जाना है। असर की नमाज भी हो गई, आखिर ये मरा क्यों नहीं? ए परवरदिगारा, बता मसलहत क्या है, बता तेरे कानून कैसे है। हातिफे गैबी से आवाज आती है, परवरदिगारे आलम की तरफ से निदा आती है, ए मेरे रसूल सुन, इसे मौत लाजिम था, असर से पहले मरना जरूरी था, लेकिन जिंदगी में जो पहला खाना जिसे इसके सामने रखा गया, बचपन से लेकर जवानी तक मीठा हलवा खाने की तमन्नाएं थी और आपने दमादे रसूल से बनवा कर दिलाया था। जब ये खाने के लिए लुकमा उठाया था ना, तब एक फकीर जाकर मेरे नाम पे, अल्लाह के नाम पे मांगा था। 7 दिन का भूखा था, ये बंदा लुकमे को भी डाल दिया। बीवी से इजाजत लेकर शरीयत के तौर तरीके से फकीरों के कासे में डाल दिया। जी वो फकीर के कासे में डाला। सच्चा फकीर मुझसे दुआ किया था, परवरदिगारे आलम, आज जिस तरीके से 7 दिन के भूखे को खाना ये खिला रहा है, इसकी जिंदगी को तू लंबा कर दे, इसकी जिंदगी को तू तवील कर दे, इनके मियां बीवी के जिंदगी को कामयाब कर दे और मियां बीवी के नुत्फे से नेक साले औलाद अता कर दे। सच्चा फकीर दुआ किया और मैं उस दुआ को कबूल कर लिया हूं। मेरे दोस्तों, कहने का मतलब ये है, रमजान के महीने में 2, 4, 5, 10 फकीर आपके दरवाजे पे आते हैं, कोई तो सच्चा होगा। आप धुतकार कर किसी को वापस मत करो, आप किसी को धक्का देकर वापस ना करो, बुरा भला ना कहो, बल्कि जितना बन सके सदका के तौर पे, फितरा के तौर पे, ज़कात के तौर पे अपने दरवाजे से अता करके भेजो, ताकि वो खुश होकर आपकी भलाई की दुआएं करे और रमजान के महीने में अल्लाह दुआ कबूल कर ले। आपके बच्चों की कामयाबी की दुआएं करे, अल्लाह दुआ कबूल कर ले। आपके घर में खैर और बरकत की दुआएं करे, अल्लाह कबूल कर ले। ऐ चश्म तूफाने नू लाने से क्या फायदा, ऐ चश्म तूफाने नू लाने से क्या फायदा, 2 बूंद ही काफी है अगर कुछ असर करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।